Hello, my dear students. I again welcome you all on my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics based on Standard 12th subject Secretarial Practice. In the last session, we started our chapter number 2, Sources of Corporate Finance, and I explained to you about sources of corporate finance, owned and borrowed capital, shares, and its features. In today's session, I will be explaining you about types of shares. Now, there are two kinds of shares. The first one is equity shares, and the other one is preference shares. So today we will first understand about equity shares and its features. Now, what are equity shares? The first point says these shares are also called as ordinary shares. And the second point says that according to Companies Act, equity shares are those shares which are not preference shares. Now, preference means what? Preference means to give first importance. किसी को महत्व देना, किसी को सबसे पहले importance देना. This is called as preference. So, according to Companies Act, Indian Companies Act says that the shares which are not preference shares, they are called as equity shares. Next, the definition reveals that equity shares do not enjoy preference for dividend. Now, dividend is what? Dividend means part of profit. So, when a company earns profit, they give certain portion of profit to its shareholders, जिसे हम हिंदी में लाभांश भी कहते हैं. जब कंपनी को फ़ायदा होता है या कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में भी बांट देती है. दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, these shareholders do not get dividend. They do not get the first priority to get the dividend. It means they get the dividend at last. The second point says they do not have priority for repayment of capital at the time of winding up of the company. Now, this point also states that they don't get their capital first. The money invested by equity shareholders will not be refunded or repaid back till the company runs. It will be paid only at the time of winding up of the company. जो पैसा शेयर होल्डर्स लगाते हैं, दैट पैसा इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल. क्योंकि उन्होंने पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाया है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब उनका पैसा जब रिटर्न करने का वक्त आता है तब भी कंपनी उनको पहले पैसा वापस नहीं करती है. सो यहाँ पर दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर इनको पहला प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है. द फर्स्ट वन इज डिविडेंड, द सेकेंड वन इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. Now, these are the fundamental sources of financing business activities. Equity shareholders own the company and they bear ultimate risk associated with the ownership. It means equity capital is the basic source. It is the fundamental source which helps in conducting business activities smoothly. Also, equity shareholders are considered as the owners and simultaneously they bear maximum risk. सबसे ज़्यादा खतरा उठाने वाले यही शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं. आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स, द रिमेनिंग फंड बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. पहले कंपनी बाकी सारे लोगों का पैसा वापस करती है. जो बाकी सारे निवेशक लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी पहले उन सभी का पैसा चुकाती है और आखिरी में जाकर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किया जाता है. इसी वजह से these shareholders are called as residual claimants of the income and assets. Now, residual means what? It means बचा हुआ.
बचा कुचा पैसा. एंड क्लेमेंट मीन्स अ पर्सन हु क्लेम्स, जो दावा करता है, जो अपनी चीज़ के लिए डिमांड करता है. सो दे आर कॉल्ड एज लास्ट क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी. Because of all these points, equity shareholders are called as residual claimants as well as last claimants of the company, because they can demand for their capital as well as dividend at last. कंपनी सबसे पहले बाकी लोगों का पैसा चुकाएगी और लास्ट में जब मौका आएगा तब इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किया जाएगा. लेट्स सी मोर पॉइंट्स अबाउट इक्विटी शेयर्स. Equity shareholders do not carry any fixed rate of dividend, and they are paid dividend at the rate recommended by the board of directors. अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था that they do not receive dividend at first. Now dividend means again part of profit. इन्हें जब कंपनी डिविडेंड देती है तो it is never given at fixed rate. इनका डिविडेंड हमेशा बदलता रहता है. इनका रेट इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट विच इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इन्हें वो डिविडेंड दिया जाता है, इन्हें उस रेट पर डिविडेंड दिया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से सिफारिश किया गया है. द नेक्स्ट पॉइंट सेज इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल. अगर किसी साल कंपनी को फ़ायदा नहीं होता है तो उस साल किसी भी तरह का डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया नहीं जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट सेज सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड. उसी प्रकार से अगर किसी साल कंपनी को फ़ायदा कम होता है तो कंपनी कम डिविडेंड अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी. सो इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर अमाउंट और लेसर पार्ट ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो इट इज क्लियर फ्रॉम दीज 2 points. इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर विल बी नो डिविडेंड. इफ दे अर्न्स लेस प्रॉफिट lesser dividend will be given to the equity shareholders. Now next point says therefore the fortune of equity shareholders is tied with the ups and downs of the company. Now fortune means what? It means सौभाग्य, लकी होना. So if a company is successful, equity shareholders receive dividend. The fortune of shareholders is actually connected with the ups and downs of the company. कंपनी के शेयर्स के वैल्यू में जितना उछाल आएगा या जितना शेयर्स गिरेंगे नीचे उसी हिसाब से शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दिया जाता है. सो किसी साल अगर ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू जाती है तो उनको ज़्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, फ़ायदा कम हुआ तो डिविडेंड कम मिलेगा. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फॉर्च्यून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. If a company is successful, they enjoy great financial rewards, and if the company fails, the risk falls mainly on them. अगर कंपनी कामयाब रहती है फ़ायदा कमाने में तो उसका फ़ायदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. और अगर किसी वजह से कंपनी कामयाब नहीं हो पाती है या फिर असफल होती है तो सारा का सारा खतरा भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही भुगतना पड़ेगा. If a company is successful, then obviously equity shareholders earn profit in the form of financial reward, and if company becomes unsuccessful, they incur loss. And because of all these points, equity share capital is called as venture capital or risky capital. इसीलिए जो भी पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है that पैसा is always on risk. उसे रिस्क कैपिटल कहा जाता है. Now there are some more points about equity shares. The first point says equity shareholders participate in the management of their company. कुछ अच्छी बातें अभी यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के बारे में है. जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. सो दे हैव रिसीव्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी. Second point says that they are invited to attend general meetings. Now generally after any discussion voting is to be done in the company meetings. So at that time they all are invited as well as they all are allowed to vote on all the matters
विच आर डिस्कस्ड एट द मीटिंग. तो मीटिंग में जो भी कुछ डिस्कशन होता है उसके बाद वोटिंग किया जाता है. इक्विटी शेयर्स को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं. दे हैव गॉट ऑल द राइट्स थ्रू विच दे कैन अटेंड द मीटिंग्स एज वेल एज दे कैन वोट on all the matters. Now next point says they elect their representatives to manage the company. Now representatives are the one who represent, जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, हमारी तरफ से प्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश के खिलाड़ी हैं, आर प्लेयर्स, दे रिप्रेजेंट इंडिया ड्यूरिंग एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स. उसी प्रकार से शेयर होल्डर्स भी अपनी तरफ से किसी और को आगे भेज सकते हैं. दे हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी. बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वक्त नहीं है, ना ही वो रोज़ कंपनी में आकर देख सकते हैं कंपनी में क्या चल रहा है. सो इन दैट केस वो अपनी जगह किसी और को चुन लेते हैं, अपनी जगह किसी और को इलेक्ट करके जाते हैं जो कंपनी पर ध्यान रखता है, कंपनी के वर्किंग पर, डेली रूटीन पर ध्यान रखते हैं. Those representatives are very important, as well as equity shareholders are also called as real owners of the company. Now let's move further towards features of shares. Now here you can see that I have made a diagram before explaining the features in details. Now there are some features of equity shares. Actually, I always tell my students to draw a picture like this about the points to be explained further. It will create good impression on the minds of examiner who will check your board papers. Also, such kind of pictures looks attractive. So make sure that you draw such pictures before explaining any points. जब भी आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन करते हो, जैसे आपको पता है कि आप आगे 10 पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हो या फिर 5 करने वाले हो, वो एक्सप्लेनेशन देने से पहले अगर आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इससे आपकी नोटबुक चेक करने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. क्योंकि ऑब्वियसली यू ऑल विल बी अपीयरिंग फॉर 12th बोर्ड एग्जाम्स. सो अच्छा असर पड़े, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो, सो उसके लिए हमेशा इस तरह के डायग्राम्स ड्रॉ करें. You can draw any kind of picture, like I have taken a circle picture. You can take any square or rectangle. Now let's see features of equity shares. The first feature is permanent capital. The other one is fluctuating dividend. The third and fourth feature says rights and no preferential rights. The fifth feature says controlling power, and equity shares are risky shares. The seventh one says that they are the residual claimants and they have no charge on assets. Next feature is bonus shares and right issue. It means right shares. Then the face value and market value. So these are the features of equity shares which we are going to study in this session. So let's begin with features of equity shares. The first feature is permanent capital. It means equity shares are irredeemable shares. The very important word over here is irredeemable. Irredeemable means non-refundable. It means जो पैसा इक्विटी शेयर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है that will not be repaid back to them during the working of the company. जब तक कंपनी चलेगी, जब तक कंपनी वर्किंग में है, तब तक इनको इनका पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा. So their capital is permanent capital. The second point says the amount received from equity shares is not refundable by the company during its lifetime. जो भी मैंने आप लोगों को बताया सेम पॉइंट है कि जो भी पैसा इक्विटी शेयर्स वाले इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी उन्हें वापस नहीं करेगी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. थर्ड पॉइंट, इक्विटी शेयर्स बिकम्स रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ऐसा नहीं कि इक्विटी शेयर्स का पैसा नहीं मिलता, बट उनका पैसा तभी मिलेगा
जब कंपनी वाइंड अप होती है. नाउ वाइंड अप मीन्स dissolving, dissolution of the company, or you can say liquidation of the company, and in very simple terms it is called as closing down of business. जब business बंद होता है, कंपनी बंद होती है, at that time only equity shareholders are entitled to receive their money back. तब तक जब तक कंपनी रन करेगी उनको उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा. जब कंपनी बंद होगी तभी इनको इनका पैसा वापस मिलेगा. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर्स. देयरफॉर इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल. इसलिए आपने अगर पैसा इसमें लगाया तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास अटक जाएगा, एंड योर कैपिटल इज कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल. कम टू द सेकेंड फीचर. द सेकेंड फीचर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. Now fluctuating means what? It means not fixed. A capital which is unfixed, not fixed. इसे हम कहते हैं fluctuating, जो हमेशा बढ़ता गिरता रहता है, which is not stable, not constant. First point says these shares do not have a fixed rate of dividend, and the rate of dividend depends upon amount of profit earned by company. In the previous slide only I had told you that they don't get dividend at a fixed rate. इनका जो भी डिविडेंड है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंपनीज प्रॉफिट. इन्हें जो भी डिविडेंड दिया जाएगा उसका रेट सेम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी साल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सो कंपनी विल गिव द डिविडेंड एट 2% और 5% रेट. कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो दे विल गेट 0% रेट ऑफ डिविडेंड. वैसे ही जिस प्रकार से कंपनी को फ़ायदा होगा उस प्रकार से डिविडेंड विल बी गिवन. सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. देयर रेट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. जितना फ़ायदा उतना डिविडेंड. नेक्स्ट पॉइंट सेज इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट्स. कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया तो ज़्यादा अच्छे रेट पर डिविडेंड विल बी गिवन. On the other hand, if there is insufficient profit or loss, board of directors may postpone the payment of dividend. अगर हम दूसरी तरफ लेते हैं तो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रॉफिट कंपनी ने नहीं कमाया, सो उस साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड देने का फैसला पोस्टपोन कर देंगे, अगले साल के लिए बढ़ा देंगे. सो एवरीथिंग इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन the amount of profit earned by the company. Next point says shareholders cannot compel them to declare and pay dividend. एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया, सो दैट विल बी द लास्ट डिसीजन. उनके फैसलों पर शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल, दे कैन नॉट प्रेशराइज, दे कांट फोर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड और टू पे द डिविडेंड. एक बार जो डिसाइड हो गया तो दोबारा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि आप हमें हमारा डिविडेंड वापस करो, हमको चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन नॉट हैपन. एंड द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर. जो भी इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है दैट इज ऑलवेज अनसर्टेन. अनसर्टेन मीन्स नॉट फिक्स्ड. इरेगुलर मीन्स अगेन सेम थिंग, जो कंटिन्यूसली नहीं मिलती है, जो लगातार नहीं मिलती है, दैट इज इरेगुलर. इनकम का मतलब यहाँ पर है डिविडेंड से. सो इनका डिविडेंड इनको हमेशा अनफिक्स्ड रेट पर मिलता है. द डिविडेंड दे रिसीव एट फ्लक्चुएटिंग रेट. कम टू द नेक्स्ट फीचर. द थर्ड फीचर सेज राइट्स. राइट्स मीन्स अधिकार, किसी को पावर्स देना, इनको राइट्स देना. अब इनके पास किस तरह के राइट्स मौजूद हैं? द फर्स्ट राइट दे हैव इज राइट टू वोट. इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स, ऑल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एट्सेट्रा. द फर्स्ट राइट दे हैव इज राइट टू वोट. कंपनी में जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी हासिल है, जो हमने पीछे पढ़ा. अब इन्हें क्या क्या करने का अधिकार है? इनको डायरेक्टर्स को चुनने का अधिकार है. दे कैन इलेक्ट डायरेक्टर्स
हमने जो पॉइंट पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव, वो इसी के लिए था. द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जिन्हें ये लोग इलेक्ट करते हैं, चुन के लाते हैं, those representatives are called as board of directors. So they act on behalf of their shareholders. Shareholders also have the right to alter memorandum and articles of association. Alter means to make some modifications or to make some changes. हमने ये दो डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में पढ़े थे, that these are the two most important documents which need to be prepared at the time of formation of the company. जब कोई कंपनी शुरुआत करती है अपनी, जब कंपनी नई नई फॉर्म होती है, उस वक्त दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं जिन्हें हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट है कि दे कैन मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन दीज टू डॉक्यूमेंट्स. The second kind of right is they have the right to share in profit. It means whatever company will earn, उसमें इनको इनका हिस्सा मिलेगा. So they have the right to share the profit. It is an important right of shareholders. They have right to share in profit when distributed as dividend. So जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स दे होल्ड देयर राइट. इनको ये अधिकार है कि इनको डिविडेंड मिले. If the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये है कि जिस साल कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, अ पॉजिटिव पॉइंट. द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स. The third feature of equity shareholders is right to inspect books. Means they can do inspection in the accounts or documents which are kept at the registered office of the company. जो भी documents हैं, जो भी important files हैं या accounts हैं या books हैं, वो सारे के सारे कंपनी के registered office में रखे जाते हैं. So equity shareholders, they have the right to closely check the accounts of such documents at the registered which are kept at the registered office of the company. इनको पूरा अधिकार है कि ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी में काम चल रहा है या जो भी. They also have the right to transfer shares. उनको नेक्स्ट राइट भी है कि वो अपने शेयर्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. The equity shareholders enjoy the right to transfer shares as per the procedure laid down in the Articles of Association. Article of Association means rules and regulations which are formed for the smooth running of any organization. जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताए जाते हैं. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा अधिकार है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकें. जैसे भी उनके रूल्स, जैसे भी उनके नियम आर्टिकल्स में बताए गए होंगे, उस हिसाब से दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स. सो स्टूडेंट्स, only this much is there for today's session. First you understand and learn the concepts properly, thoroughly. In the next session, I will explain you more features of equity shares. Till then, stay safe and healthy, and thank you.